Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be discussing CAT 2020 slot 2 का एक बहुत interesting set. Let's apply our fate framework to decide क्या ये set करने लायक था या नहीं था. A shopping mall has a large basement parking lot with parking lots painted in it along a single row. So parking का distribution करना है, sequencing करनी है, something like this. These slots are quite narrow. A compact car can fit in a single slot, but an SUV requires 2 slots. So the moment this extra data comes, this is slightly less on familiarity. Although it looks pretty simple that you will have spaces for parking and the cars that will come 1, 2, 3, 4, you'll have to allocate in some kind of a sequence. But this data that compact car can fit in a single slot, SUV will require 2 slots, and then the numbering of cars in which they arrive and the vacant spaces are then represented by V. I'll say this is not something which is straightforward or familiar. I'll rate it low on familiarity. In terms of ambiguity of clues, so there are just 4 paragraphs, so to say, in fact 3 paragraphs, and clues पे अगर जाएं तो for instance suppose cars number 1 to 5 arrive and park where cars 1, 3 and 5 are compact, 2 and 4 are SUVs. At this point the parking lot would be described by the sequence 1, 2, 3, 4, 5. तो अगर 5 कार्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 सीक्वेंस में पार्किंग लॉट को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा. इसके बाद 2 और 5 चली गई, सो 2 and 5 now vacate their slots. The parking lot would be 1 VV 3 4. Now 5 ने जो वेकेंट करा है उसके लिए उन्होंने एम्प्टी, क्योंकि वो लास्ट कार के बाद की जगह है तो ऑलरेडी सारी पूरी पार्किंग ही खाली है, तो देयरफॉर उसके बाद वेकेंट आइडियली दे शुड हैव रिप्रेजेंटेड इट एज 1 VV 3 4 and then again VV. 5 is what, a compact car, तो मे बी जस्ट अ सिंगल वी. तो ऐसा कुछ दे देना चाहिए था. तो थोड़ा टाइम इसमें और लग जाएगा ये समझने में कि क्या ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बट 2 ऑलरेडी इज गिवन टू बी एन एसयूवी, कार 2 इज एन एसयूवी, तो 2 वेकेंट लॉट्स होंगे. पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे एसयूवी के लिए एक वेकेंट और जो 5th कार है उसके लिए भी एक वेकेंट और उनको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आगे ले जा रहे हैं. ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज 3, 4 को शिफ्ट करना पड़ेगा. बट देयर कैन बी सम अमाउंट ऑफ not very straightforward is what I'll say. Time consumption, हर एक क्वेश्चन को क्विकली ग्लांस कर लेते हैं. हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फो एंड देयरफॉर टाइम कंजम्पशन इज आल्सो नॉट इन आवर फेवर. एक्स्ट्रा इन्फो भी इज नॉट इन आवर फेवर. For me, again, this is a bias that I might have because of the particular question type and category and ambiguity of clues, or my bias towards preference towards more straightforward sets जहाँ पे देखते से चीजें बहुत easily समझ में आ जाती हैं. Whatever be the case, I will not pick this set as one of the sets to be done. You can have a difference of opinion and you might feel this is very easy and I'm perfectly okay with that. हर किसी की strengths weaknesses अलग अलग हो सकती हैं, but on the face of it, at a general level, this does not seem to be a very convincing set asking us कि नहीं ये first 2-3 sets में हो जाए. अब एक बार quickly समझ लेते हैं कि directions क्या है and then let's quickly attempt question number 1 along with it. So अगर simple level पे summarize करें तो कॉम्पैक्ट कार जो होगी वो एक स्पेस यूटिलाइज करेगी. SUVs will utilize 2 spaces and therefore when an SUV leaves you will get 2 vacant spaces and 1 vacant space में you cannot fit in an SUV को 2 स्पेस चाहिए, पार्किंग लॉट की 2 स्पेसेस चाहिए. तो अगर अब मैं स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलूँ तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि कैसे अप्रोच करना है. इनिशियली कार्स नंबर 1, 2, 3, 4 अराइव among which 1 and 4 are SUVs. तो द वे आई विल स्ट्रक्चर दिस इज, आई विल से 1 एसयूवी है तो उसको 2 पार्किंग लॉट्स की स्पेस लग जाएगी और दोनों मिलाकर 1 अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. 2 और 3 कॉम्पैक्ट कार्स हैं तो 2 और 3 सिंगल स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. और 4 अगेन एसयूवी है तो 4 के लिए यू विल रिक्वायर बोथ द स्लॉट्स. 4 एसयूवी है तो दोनों मिलाकर 4 कैप्चर कर लेगी वो स्पेस. 4 आर एसयूवीज, 2 and 3 आर कॉम्पैक्ट कार. कार 1 देन लीव्स, कार 1 चली गई. जैसे ही कार 1 चली गई तो अंडरस्टैंड विजुअल आप क्रिएट करोगे कि यार 2 स्पेस खाली हो गए, कॉम्पैक्ट की 2 खाली हो गई और कॉम्पैक्ट की दोनों खाली में एक एसयूवी आ सकती है या फिर 2 कॉम्पैक्ट आ सकती हैं. फॉलोड बाय द अराइवल्स ऑफ कार 5 एंड कार 6 एंड एसयूवी. अब कार 5 जो कॉम्पैक्ट कार है वो तो यहां आ जाएगी सबसे पहले वाली जगह पे, कार 1 चली गई ये छोड़ के, है ना. सो कार 1 देन लीव्स एंड यहां पर 2, यहां पर 3 और इन दोनों स्पेसेस पे you have 4 and then you have followed by arrivals of car 5 आ चुकी है and car 6 and SUV. अब SUV अगर आएगी तो it will occupy 2 spaces, तो car 6 आ गई.
कार 4 देन लीव्स, अब कार 4 छोड़ के चलेगी तो रिमेंबर हमें 2 स्पेसेस खाली मिल जाएगी. देन कार 7 एन एसयूवी एंड कार 8 अ कॉम्पैक्ट कार अराइव. कार 4 छोड़ के जाने के बाद कौन सी कार आई है? 7 आई है विच इज एन एसयूवी. तो 4 की जो 2 वेकेंट स्पेसेस मिलेंगी, ये जो 2 वेकेंट स्पेसेस है, यहां पर एसयूवी 7 आ सकती है, 5 अपनी जगह पे है, 2 3 6 एसयूवी अपनी जगह पे है. एंड नाउ कार 8 अ कॉम्पैक्ट कार अराइव्स, सो कार 8 विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस, तो कार 8 यहां आ जाएगी. एट दिस मोमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्ड कार इज पार्क्ड नेक्स्ट टू कार 3. कार 3 के पास कौन कौन सी कार पार्क्ड है? एक है 7 और एक है 2. तो ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं, 7 है. करेक्ट आंसर बिकम्स चॉइस डी. सो प्रिटी मैनेजेबल सेट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द सीक्वेंस, नॉट टू डिफिकल्ट. आपको बस पार्किंग लॉट्स में एलोकेशन करते जाना है कि कार्स कैसे आ रही है और वो कैसे पार्किंग स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर रही है. द ओनली चैलेंज बीइंग अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ अराइवल ऑफ कार्स, देयर डिपार्चर and taking care of compact and SUVs. So question number 1 we are done. Let's move to question number 2. Question number 2, अब सारी information we have already understood. Let's look at this. Suppose 8 cars have arrived, of which 2 have left. तो 8 में से 2 कार तो छोड़ के जा चुकी है भाई, ठीक है. And suppose that car 4 is a compact and car 7 is an SUV. तो कार 4 compact है, कार 7 SUV है. Which of the following is a possible? Which of the following मतलब ऑप्शंस का ही यूज करना है, और पॉसिबल करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है. जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है कि कौन सा केस पॉसिबल है, ऑलवेज ग्लांस एट द ऑप्शंस एंड ट्राई एंड स्टार्ट विद दैट ऑप्शन जो आपको लग रहा है सबसे ज्यादा लाइकली है, जो सबसे इजी होगा चेक करना. तो इफ आई क्विकली ग्लांस 8 2 3, 4th स्पॉट वेकेंट है, यहां पर भी 4th स्पॉट वेकेंट, यहां 4th स्पॉट वेकेंट, यहां 1st स्पॉट वेकेंट, मतलब कार 4 ने जगह खाली करी है, ऐसा कुछ हो रहा है फर्स्ट 3 ऑप्शंस में, और कार 1 ने जगह खाली करी है, वेकेंट स्पॉट आया है. बट अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखूं तो 7 पहले आ गया 6 के, थोड़ा चैलेंज होगा इसे अरेंज करना. ऑप्शन बी को अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी 6 आ गया पहले 5 के, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा. यहां अगर देखें तो 8 फर्स्ट प्लेस पे आ गई, 2 3 का ऑर्डर मेंटेन, 4 ने खाली कर दी वेकेंट स्पेस, 5 6 7 का ऑर्डर मेंटेन. सो इट विल प्रोबेबली बी इजियर फॉर मी टू क्रिएट दिस सिनेरियो. अगर ये नहीं बन पाया तो बाकी ऑप्शन पे चले जाएंगे, बिकॉज हमें तो एक केस क्रिएट करना है. लेट्स स्टार्ट विद सी, बिकॉज दिस सीम्स टू बी द इजीएस्ट. देयर इज नो रिवर्स ऑर्डर अवेलेबल. सीक्वेंस में 2 3 4 5 6 7 और 8, इनफैक्ट 2 3 4 5 7 तक सीक्वेंस में, 8 को फर्स्ट की जगह रिप्लेसमेंट लाना है. अब उन्होंने बोला कार 7 तो एसयूवी है और कार 4 कॉम्पैक्ट कार है, तो कार 4 की जगह खाली हो गई होगी. तो लेट्स स्टार्ट विथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इनफैक्ट 8 कार से अराइव, जिनमें 2 जा चुकी है तो 2 हमें खाली करनी है. मैं 7 तक का सीक्वेंस ले लेता हूं. लेट्स से 7 कार्स वर पार्क्ड लाइक दिस. एंड नाउ मुझे बस क्या करना है, मुझे इस कार 4 को हटा देना है, कार 1 को हटा देना है, और कार 1 की जगह पे किसे प्लेस कर देना है? 8 को. तो अगर मैं बोलूं कार 1 चली गई, कार 1 चली गई तो यहाँ एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगी भी. यू विल हैव 2 3 4 5 6 7. अब आई कैन हैव कार 8 कमिंग इन दिस वेकेंट स्पॉट, तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 8 2 3 4 5 6 एंड 7. एंड नाउ वी आर सेइंग कि कार 4 ने, जो कि एक कॉम्पैक्ट कार है, तो वो एक स्लॉट खाली कर देगी, तो कॉम्पैक्ट कार खाली हो गया. 8 2 3 वेकेंट स्पॉट 5 6 7. So 8 2 3 vacant 5 6 7. This is a possible arrangement. I will not waste my time in the exam scenario to create these kind of arrangements and check कि वो नहीं बन पा रहे. But you can try this on your own and you will realize कि कुछ ना कुछ ambiguity आ जाएगी कि अब ये 7 6 के पहले कैसे लाएं. 8 को फर्स्ट में प्लेस करना है तो वो लास्ट में ही आएगा वेकेंट होने के बाद 1 के, and so on and so forth. So question relatively is easier because options available थे और possible arrangement ही पूछा था. Let's look at question 3. Suppose the sequence at some point of time is 4 5 6 V3. अब अगेन 4 5 6 सीक्वेंस में है, 3 एंड में जा रहा है और 4 5 6 उसके पहले आ रहे हैं, मतलब वेकेंट स्पेसेस को 4 5 6 में ऑक्यूपाई करा होगा, ये श्योर हो गया. अब वेकेंट स्पेसेस को 4 5 6 में ऑक्यूपाई करा होगा तो आई कैन स्टार्ट विथ 1 2 3. मैं 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, और बिकॉज मैं 1 और 2 को हटाकर 4 5 6 V चाह रहा हूं, कैन आई से मुझे 4 स्पेसेस चाहिए 3 के पहले. 4 स्पेसेस तब आ सकती है जब 1 और 2 दोनों कैसी हो, एसयूवी. सो आई एम नाउ स्टार्टिंग विद दिस दैट दोनों एसयूवी हैं, क्योंकि आई नीड 4 स्पॉट्स. तो 1 ने 2 स्पेस ऑक्यूपाई करी, 2 ने 2 स्पेस ऑक्यूपाई करी. अब सपोज 1 ने इसको एम्प्टी कर दिया. अब 1 ने एम्प्टी कर दिया तो 4 और 5 यहां आ सकते हैं, करेक्ट. 4 आएगा 5 आएगा.
फिर उसके बाद 6 आएगा तब जब सेकेंड खाली होगा. तो वी कैन हैव दिस सिनेरियो दैट वन हैज विकेटेड, तो देयर आर 2 स्पॉट्स एंड देन यू हैव एन एम्प्टी स्पेस विथ V. तो इनफैक्ट ये ले लेते हैं कि 1 ने खाली कर दिया, फिर 2 ने भी खाली कर दिया. सो अगर 2 ने खाली कर दिया है तो यहां पर भी वेकेंट स्पॉट आ जाएंगे और यहां पर 3 अकेला बचा रहेगा. नाउ किसकी टर्न आती है? 4. तो कार 4 विल कम हियर. देन किसकी टर्न आती है? 5 विल कम हियर. देन किसकी टर्न आती है? 6 विल कम हियर. और यहां पर एक वेकेंट स्पॉट बचा रहेगा. सो सिनेरियो पॉसिबली कुड बी बिल्ड लाइक दिस. इससे हम क्या डेफिनेटली निकाल सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. कौन सा नेसेसरीली ट्रू नहीं है? क्या 5 कार कॉम्पैक्ट है? यस. क्या कार 4 कॉम्पैक्ट है? यस. क्या कार 1 एसयूवी है? यस. कार 3 के बारे में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो डेफिनेटली देन वी कैन से दैट कार 3 इज एन एसयूवी इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. करेक्ट आंसर विल बी चॉइस सी. सो अगेन मैनेजेबल क्वेश्चन. 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं. लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. Suppose that car 4 is not the first car to leave and that the sequence at a time between the arrival of the car 7 and car 8 is this. तो कार 7 के अराइवल के बाद का सीन ये है. कार 7 के अराइवल के बाद के सीन में ऑर्डर थोड़ा अजीब सा है. फर्स्ट स्लॉट वेकेंट दिख रहा है, फिर 7, फिर 3, फिर 6, फिर 5. और कार 4 पहली कार नहीं थी और इसके अलावा कुछ एसयूवी कॉम्पैक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है. तो लेट्स ट्राई एंड बिल्ड कि ये वाला सीक्वेंस 7th के अराइवल के बाद, 8th आना बाकी है अभी, 7th के अराइवल के बाद तो टॉप 7 कार्स को लेके चलना है. और यहां पर 5 पोजीशन दिख रही है. तो स्टार्ट विथ लेट्स से 1 2 3 4 एंड मे बी 5. तो इस तरह 5 कार से अगर हम स्टार्ट करके देखें कि लास्ट कार वॉज द 5th कार, थर्ड अपनी पोजिशन पे ही है. सो थर्ड इज एट द करंट पोजिशन, 5th इज एट द करंट पोजिशन. इनका सीक्वेंस एज इट इज रहा. इस 4th की जगह पे हमें 6th को लाना है. 4th कार की जगह पे वी नीड टू ब्रिंग इन कार नंबर 6. पर उसके पहले 4th कार खाली नहीं होगी तो कार 2 खाली होगी सपोज, और फर्स्ट का बाद में वेकेंट स्पॉट रह जाएगा. तो देन अगर अभी मैं ऐसा कर दूं कि 4 की जगह 6 को रिप्लेस करना है और सपोज मैंने 4 को खाली नहीं करा, सपोज आई एम्प्टीड दिस पार्किंग लॉट 2. अगर 2 वाली कार चली जाती है तो इस तरह का सिचुएशन बन जाएगा कि आई विल हैव 1 देन गैप देन 3 देन 4 एंड देन 5. तो सबसे पहले कार 2 ने वेकेंट करा बिकॉज वी हैव गिवन कि कार 4 इज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव. सो वी आर सेइंग कार 2 इज द फर्स्ट कार टू लीव. नाउ कार नंबर 6 विल कम. ऑर्डर में आती है. अब 6 विल कम तो 6 शुड ऑक्यूपाई हियर. पर 6 तो ये ऑक्यूपाई नहीं कर रहा. 6 तो हमें बोला है कि 3 के बाद वाला स्लॉट ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 4 की जगह ऑक्यूपाई करी होगी. और हमें यहाँ 7 को ऑक्यूपाई करवाना है. इसका मतलब इसके बाद कार 4 ने वेकेट कर दिया होगा. अब कार 4 ने विकेट कर दिया, वहां तक भी ठीक है कि यहां पर 3 और यहां पर कार 4 ने विकेट कर दिया और यहां 5 है. अब हमारी 2 कार्स जा चुकी है. कार 2 इज गॉन, कार 4 इज गॉन. बट नाउ वी वांट एन अरेंजमेंट वेयर कार 6 विल नाउ टेक दिस प्लेस रादर देन बिटवीन 1 एंड 3. आइडियली तो 6 को ही लेना चाहिए था. ये क्यों नहीं ले पा रहा होगा? इस तरह का अरेंजमेंट क्यों बन पा रहा होगा? क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कार की जगह होगी और कार 6 को एसयूवी होना पड़ेगा, तभी जाके वो 4 की जगह ले पाएगी. और कार 6 अगर एसयूवी है तो कार 4 को भी एसयूवी होना पड़ेगा. अदरवाइज कार 6 वुड हैव कम इन हियर. सो व्हिच मींस वी कैन से कार 2 वाज अ कॉम्पैक्ट कार. कार 2 कॉम्पैक्ट कार थी. कार 4 एसयूवी थी. एसयूवी जब गई तो इसने 2 जगह खाली छोड़ी और इसलिए कार 6 जब आई तो कार 6 ऑक्यूपाइड दिस स्पेस एंड कार 6 देयरफॉर इज आल्सो एन एसयूवी अलोंग विद कार 4. और अब कार 7 जो आई वो यहां आई और दिस पर्टिकुलर कार वाज अ कॉम्पैक्ट कार. और फिर अब 1 खाली छोड़ के चला गया वेकेंट स्पॉट. तो वेकेंट 7 3 देन 6 एंड देन 5. दिस इज हाउ द अरेंजमेंट विल लुक लाइक. V7 3 6 5. सो ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स? कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है? कार 6 इज कॉम्पैक्ट. नो, कार 6 नेसेसरीली हैज टू बी एन एसयूवी. सो ए ऑप्शन इज द वन विच इज फॉल्स. कार 2 कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है. 7 उसको रिप्लेस करिए, कॉम्पैक्ट है. कार 4 एसयूवी है, ये भी सही है. तो करेक्ट आंसर इज चॉइस ए. So once you solve it, it looks easy. But believe me, in the exam pressure, for the first time when you're looking at this, there is a possibility that you might feel slightly overwhelmed by the data and the conditions that are given. But it's completely your call. You tell me in the comment section what is the time that you took, how difficult did you find, would you call it a difficult set, moderate set, exam में करने लायक है नहीं है? Please share your opinions. That's it from my side. I'll take a leave. Sure.